Start with the greatest name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Assalamu alaikum. Dear companions, today we are going to discuss the most important topic of political science that is also included in philosophy of law as well as in the sociology. This is the most important question with regards to competitive exams as well as to these three subjects: philosophy of law, sociology and political science. Basically, social contract theory. Social contract theory is given by three philosophers: Rousseau, Locke and Hobbes. Rousseau belongs to France, whereas Hobbes and Locke, these both are English philosophers. These both philosophers belongs to England. Coming to the Rousseau's social contract theory, basically Rousseau, born in Geneva, which is the today's capital of Switzerland, he was born in 1712. He wrote many books, among which two are the most famous books: Discourse of Inequality and Social Contract. These are the two most famous books of Rousseau. Rousseau is also called the father of French Revolution, and he is also called the father of modern liberty. So, coming to the background of the social contract theory, why there become a need to give the social contract theory by Rousseau. Basically, there at the time of the Rousseau, France was a monarchy. It means the kingship. फ्रांस में जो थी वो बादशाहियत हुआ करती थी, बट मोनार्की इन अ बैड वे, अ टेरेनिकल मैनर. वो जो बादशाहियत थी वो बहुत ही ख़राब बादशाहियत थी जो वेल गवर्न नहीं थी. और फ्रांस जो थी वो एग्रीकल्चर स्टेट थी. इन द फ्रांस देयर यूज्ड टू लिव थ्री टाइप ऑफ पीपल्स. मीन्स the peoples of France were categorized in three classes: royal class, landlords and ordinary class. Now, royal class, that belongs to king. Landlords were the peoples who used to have their own lands, whereas the ordinary class of peoples were the laborers, farmers and the most common peoples of the France. They were called the ordinary class of people. Now, royal class and landlords, these both the classes signed a treaty among themselves that they would be exempted from the taxes. ये जो टैक्सेस हैं ये इन दोनों क्लासेस से नहीं लिए जाएंगी, रॉयल क्लास और लैंडलॉर्ड क्लास से, जबकि ऑर्डिनरी क्लासेस से टैक्सेस लिए जाएंगी. और वो जो टैक्सेस ऑर्डिनरी क्लास से लिए जाएंगी वो टैक्सेस ऑर्डिनरी क्लास पे हम खर्च नहीं करेंगे, जबकि we will be applying for our own betterment, for the betterment of military, for the betterment of our own state or for our own luxury. So this is the main background, main tyrannical manner of the state that compels Rousseau to give his social contract theory. Now here we would be discussing a term, state of nature, that is mostly repeated in this theory as well as in the theories of Hobbes and Locke. Let me clear you what we mean by the state of nature. State of nature means pre-law state. लॉ से जो पहले स्टेट थी, एक ऑर्डिनरी स्टेट जो हम कह सकते हैं सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड. जब पहले पुराने ज़माने में स्टेट हुआ करती थी, जब लोग रहते थे तो तब कोई स्टेट की मतलब वजूद नहीं था. प्री स्टेट हम कह सकते हैं, ये स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं. विदाउट एनी गवर्नमेंट, विदाउट एनी लॉ जो सोसाइटी हो उसे कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर, जो कि दुनिया में सबसे पहले थी. अब ये स्टेट ऑफ नेचर कौन सी थी, ये तीनों फिलोसोफर्स ने अलग अलग वे में अपनी थ्योरीज में डिफाइन किया हुआ है. आज जैसे कि हमारा टॉपिक है रोसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो हम देखेंगे रोसो क्या कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के हवाले से. कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ रोसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, रोसो स्टेट्स ऑफ नेचर. अब रोसो के टाइम स्टेट ऑफ नेचर क्या थी, रोसो का क्या कॉन्सेप्ट है इस स्टेट ऑफ नेचर के. बेसिकली दीज आर द प्रेडिक्शंस के ऐसा होगा. अब ये किसी ने देखा तो नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, था कि नहीं था, लेकिन ये रोसो ने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो ऐसे हुआ करती थी जब कोई लॉ नहीं था, जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी पीपल्स की. प्री लॉ जो स्टेट थी वो लॉ की स्टेट जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो ये थी. कौन सी? मैन वाज नोबल सेवेज. जो इंडिविजुअल था वो नोबल सेवेज था. व्हाट वी मीन बाय द नोबल सेवेज? नोबल सेवेज मीन्स न्यूट्रल. अब न्यूट्रल हम कह सकते हैं, दिस इज द मोस्ट यूज्ड टर्म इन द केमिस्ट्री for the atoms, that this is the neutral atom, this is the positive, this is the negative atom. Neutral means to none side, किसी भी साइड पे ना हो. जो मैन था, जो इंडिविजुअल था वो न्यूट्रल था, नेचुरल था.
ना उसमें ना वो गुड था ना बैड था। अब नेचुरल का मतलब ये है कि न ज़्यादा अच्छा था न ज़्यादा बुरा था। प्री पॉलिटिकल स्टेज, ये प्री पॉलिटिकल स्टेज थी। पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं स्ट्रगल एंड इवेंट और एन कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के पहले, किसी भी इवेंट, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी स्ट्रगल से पहले की जो नेचर थी, ये स्टेज थी आदमी लोगों की, जब वो आपस में रहा करते थे। कोई लॉ नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। प्रिमिटिव मैन वाज सोलेटरी। नाउ सोलेटरी मीन्स नो रिलेशन सेंस। जो इंडिविजुअल्स रहा करते थे उनमें कोई भी सेंस नहीं थी कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। ऐसी कोई भी सेंस थी ही नहीं उन लोगों में। जैसे जैसे चाहे वो उस हिसाब से रहता था। देयर वाज नो एनी कंसेप्ट ऑफ रिलेशन सेंस उन लोगों में नहीं हुआ करता था। ये थॉट है रोसो का। रोसो स्टेट ऑफ नेचर ये है। वो कहता है प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट इवॉल्व सबसे पहले। अब ये जो चीज़ें थी ये प्री लॉ थी, जो स्टेट ऑफ नेचर थी इन द सिंस द इंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, स्टेट का वजूद कैसे आया, लॉज कैसे बने, ये वो आगे बता रहा है कि प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट इवॉल्व। सबसे पहले प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो अपीयर हुआ, वो जाहिर हुआ। कैसे कि एक दिन एक आदमी उठा और उस आदमी ने कहा कि दिस इज़ माइन दैट इज़ दाइन। मीन्स ये जो है ये मेरा है और दैट इज़ दाइन वो जो है वो तुम्हारा है, उसका है। दिस इज़ माइन दैट इज़ दाइन, ये कॉन्सेप्ट जब उठा तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस पैदा हुई। यहाँ पे एक लॉ पैदा हुआ कि ये जो चीज़ मेरी है ये कोई और यूज़ नहीं करेगा, इससे कोई और फ़ायदा नहीं उठाएगा क्योंकि ये मेरी चीज़ है, दिस बिलोंग्स टू मी। These restrictions started and when the restrictions started there came a social contract because अब कोई किसी की चीज़ जो कहता है वो ये मेरी चीज़ है, अगर कोई और इस्तेमाल करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जो वो कॉन्फ्लिक्ट आया तो उससे आदमियों की जो लाइफ थी उस लाइफ को ख़तरा था, उसकी लिबर्टी को ख़तरा था, उसकी स्ट्रगल को, उसकी लाइफ को ख़तरा था। तो उस ख़तरे से, उस कॉन्फ्लिक्ट से, उससे बाहर आने के लिए इन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कमिंग टू द सॉवरेंटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये था कि हम अब ऐसे रहेंगे कि ये जो चीज़ मेरी है ये इसके ऊपर किसी और का हक नहीं है, तो ये कोई भी इससे कोई भी फ़ायदा नहीं उठाएगा, कोई भी इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये थी हमारी स्टेट ऑफ नेचर। अब उसमें सॉवरेंटी, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी बनाया है इन्होंने, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इन्फोर्स कौन करवाएगा, लॉ कौन इन्फोर्स करेगा, इसको ऑब्जर्व कौन करेगा, इसको एक्सरसाइज कौन करेगा। तो इन्होंने एक सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया। सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट सुपरमेसी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। अब सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट क्या था? एवरी इंडिविजुअल सरेंडर्ड टू जनरल विल। अब जो हर एक शख्स था, हर एक इंडिविजुअल था इस स्टेट का, उसने अपने खुद को सरेंडर किया स्टेट को। लेकिन स्टेट तब तो थी नहीं, तो किसको सरेंडर किया? वो अब सॉवरेन उन्होंने किसको बनाया? उन्होंने सॉवरेन बनाया जनरल विल को। जो आदमियों की जनरल जो थॉट है उस थॉट को उन्होंने सॉवरेन बनाया, तस्वर को जो है उन्होंने सॉवरेन बनाया हुआ था। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉवरेंटी। आगे हम जनरल विल को डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी ये सॉवरेंटी को हम डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज सॉवरेंटी? सॉवरेंटी कैन बी रिप्रेजेंटेड। जो सॉवरेंटी है वो कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसको कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। जैसे कि कोई इंडिविजुअल, तो इन्होंने कहा कि हम किसी इंडिविजुअल को क्यों बनाएं, हमारे ऊपर कोई सॉवरेन क्यों हो। अब जाहिर सी बात है हमारा खुद आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है और हम दूसरे अपोनेंट को ही कैसे सॉवरेन बना लें। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा मुखालिफ है, मेरा कोई अपोनेंट है, तो मैं उससे सुपरमेसी कैसे दे सकता हूँ अपने ऊपर कि तुम मेरे ऊपर गवर्न करो। माई ऑल राइट्स आई गिव ऑल माई राइट्स टू यू दैट यू शुड गवर्न मी। तो मैं अपने ऊपर अपने अपोनेंट को सुपरमेसी कैसे दे सकता हूँ? तो इन्होंने रोसोस जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसने भी यही बात कही है कि हम किसी और को, जो हमारा अपोनेंट है, उसको हम क्यों ये हक दें कि वो हमारे ऊपर जो है वो गवर्न करे, वो हमारे ऊपर वो सुप्रीम हो। इसीलिए इन्होंने एक ख्याल को, जो जनरल विल होगी, जो सबका ख्याल होगा, जो सबका थॉट होगा, उस थॉट को इन्होंने सॉवरेन बनाया था। वेपन अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म। अब ये एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ हथियार था। सॉवरेंटी मस्ट रिजाइड इन कम्युनिटी। जो सॉवरेंटी होगी वो सॉवरेंटी जो होगी वो अनडिवाइडेड होगी, क्योंकि वो सीकालियो का एक कोटेशन है
कि टू डिवाइड सॉवरेंटी इज टू डिस्ट्रॉय सॉवरेंटी। सॉवरेंटी को अगर डिवाइड किया जाता है तो उसका मतलब कि उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो सॉवरेंटी इज अनडिविजिबल। इन्होंने कहा सॉवरेंटी मस्ट रिजाइड इन कम्युनिटी। जो सॉवरेंटी होगी वो पूरी कम्युनिटी में होगी, उससे कोई एक इंडिविजुअल या एक कोई ग्रुप ऐसे नहीं है कि वो जो वेल्दी ग्रुप होगा, जो इकोनॉमिक क्लास ग्रुप होगा, या जो पुअर होगा, या जो सुप्रीम होगा, या इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होगा, वो एक्सरसाइज करेगा सॉवरेंटी। ऐसे नहीं था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रोसो में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रोसो कहता है कि जो सॉवरेंटी होगी वो होगी पूरी कम्युनिटी की, वो एक्सरसाइज करेगी पूरी कम्युनिटी एज अ जनरल विल। अब जनरल विल क्या है इसको हम देखते हैं। जनरल विल सिंथेसाइज ऑफ रियल एंड एक्चुअल विल इज जनरल विल। सिंथेसाइज का मतलब होता है टू सम, टू ऐड, किसी दो चीज़ों को आपस में मिलाकर तीसरी चीज़ हासिल करना। सिंथेसाइज ऑफ रियल एंड एक्चुअल विल। रियल विल और एक्चुअल विल को मिलाकर जो हमें विल मिलती है उस विल को हम कहते हैं जनरल विल। अब सबसे पहले ये तो और डिफिकल्ट हो गया कि रियल विल क्या है और एक्चुअल विल क्या है। जैसे कि ये दोनों वर्ड्स मोस्टली सिमिलर हैं, लेकिन इनकी मीनिंग में कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल विल जो है वो सेल्फ विल होती है और वो खुद के इंटरेस्ट के बारे में होती है। मेरा इंटरेस्ट है इसीलिए इसे कहेंगे कि ये मेरी एक्चुअल विल है। और मेरी रियल विल क्या होगी? मेरी रियल विल ये होगी कि मैं किसी और का भला चाहूँगा, केयर ऑफ एनदर। मैं खुद का नहीं लेकिन किसी और का एडवांटेज अगर चाहूँ तो वो होगा रियल विल। अब जबकि मैं खुद कोई फ़ायदा उठाना चाहूँ, वो जो थॉट होगा मेरा, उसे मैं कहूँगा एक्चुअल विल। अब ये एक्चुअल विल और रियल विल जब दोनों मिलती हैं तो ये एक जर्नल विल बनाती हैं कि जिसमें मेरा भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, तो ये हो गया जर्नल विल। जर्नल विल इज़ विल विच विल्स द विल ऑफ पीपल। अब ये थोड़ा मरक्कब हो गया। जर्नल विल इज़ विल विच विल्स द पीपल मीन्स द विल दैट वर्क्स फॉर द विल ऑफ द पीपल। कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा आइडिया जो पीपल्स के आइडियाज़ के मुताबिक काम करे, उसे हम कहते हैं जर्नल विल विच विल्स द विल ऑफ पीपल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जर्नल विल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। अब ये जो जर्नल विल है, ये जो सॉवरेंटी है, वो एक्सप्रेस की जा सकती है मेजॉरिटी से या माइनॉरिटी के तरीके से। ऐसे नहीं होगा कि जो मेजॉरिटी होगी वो ही एक्सरसाइज करेगी सॉवरेंटी को, वो ही जर्नल विल को एक्सरसाइज करेगी, जबकि माइनॉरिटीज़ का कोई वैल्यू नहीं होगा। उस रोसो ने माइनॉरिटी को कभी भी नेगलेक्ट नहीं किया। उसने कहा है कि ये दोनों ग्रुप्स जो होंगे, जो मेजॉरिटी होगी या जो माइनॉरिटी होगी, ये दोनों ही एक्सप्रेस करेंगी जर्नल विल को, यानी कि सॉवरेंटी को। कमिंग टू द फीचर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कंक्लूजन ऑफ दिस टुडेज टॉपिक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट। अब ये जो स्टेट बनी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बनी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बना कि लोगों को, इंडिविजुअल्स को जो था वो डर था अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी लाइफ का, अपनी लिबर्टी का, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी। और एक जो स्टेट थी वो स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो स्टेट ऑफ वार में चेंज हो चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसकी बिना पर एक स्टेट बनाई गई कि ये लॉज हैं, इन लॉज के ऊपर हम रहेंगे, ये लॉज हम सब एक्सरसाइज करेंगे। और उन्होंने एक सॉवरेन बनाया हुआ था अपने ऊपर। उस सॉवरेन को वो कह रहे थे जर्नल विल, यानी कि थॉट ऑफ द पीपल। और सॉवरेन उन्होंने जर्नल विल को बनाया हुआ था। कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, आर्टिफिशियल स्टेट। ये जो स्टेट थी, जाहिर सी बात है ये आर्टिफिशियल स्टेट है, क्योंकि सिंस द इंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड ये ऐसे ही रह रहे थे, इनके पास कोई स्टेट नहीं थी। तो ये आर्टिफिशियल है, लोगों की खुद की बनाई हुई स्टेट है। जबकि प्रॉपर्टी का जो आइडिया जब इवॉल्व हुआ तो उसके बाद इन्हें ये स्टेट बनानी पड़ी कि इन लॉज के ऊपर हम रह सकते हैं। जर्नल विल वाज द सॉवरेन पावर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रोसो। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। अब लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन लिबर्टी कैसे? लिबर्टी फ्रॉम द स्टेट एंड लिबर्टी फ्रॉम द इंडिविजुअल। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि अब जब उनको लिबर्टी चाहिए तो उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से पहले जो स्टेट ऑफ नेचर थी उनकी, वो तो फ्री थी, उसमें तो वो सारे पावर्स एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें उनको कंप्लीट लिबर्टी थी। जबकि इसमें जो है वो लिमिटेड लिबर्टी है, पॉजिटिव थॉट ऑफ लिबर्टी है, जबकि वो तो नेगेटिव थॉट ऑफ लिबर्टी था, कंप्लीट लिबर्टी थी, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है अपने पहले टॉपिक लिबर्टी में। तो इन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी कि फिर से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आए? और सबसे पहले जबकि ये फ्री थे तो ये प्रॉपर्टी का जो आइडिया आया तो ये क्यों आया? सबसे पहले लोग जो रह रहे थे वो बिल्कुल फ्री थी, उनके पास कोई लॉ नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी उनके ऊपर, वो बिल्कुल फ्री थे, वो कंप्लीट लिबर्टी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, दिस बिलोंग्स टू मी, दिस बिलोंग्स टू यू,
ये कॉन्सेप्ट जब आया तो लोगों को पता चला कि इससे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि ये मेरी चीज़ें तो आप क्यों इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये मेरी चीज़ें इससे आप क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस पे एक कॉन्फ्लिक्ट बना। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी काफ़ी नुकसानात हुए, उनकी लाइफ्स को डेंजर पहुँचे, उनकी प्रॉपर्टी जो थी उनको ख़तरा हुआ और वो एक ख़तरे में स्टेट ऑफ वार में पहुँच गए। तो वो जब स्टेट ऑफ वार में पहुँच गए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि द स्टेट दैट वी हैव प्री-सोशल प्री-पॉलिटिकल स्टेज दैट वाज बेटर देन टुडेज स्टेट ऑफ नेचर, के ये स्टेट ऑफ नेचर जो है ये स्टेट ऑफ वार में तब्दील हो चुकी है। जबकि हम जैसे पहले रह रहे थे विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉ, वी वर हैविंग द कंप्लीट लिबर्टी। तो हमने ये जो काम किया ये गलत किया, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता था कि वो खुद फिर से उस स्टेट ऑफ नेचर जो प्री पॉलिटिकल स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें चले जाए। ये तो हो नहीं सकता था। इसीलिए इन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बिना पर ये उन्होंने कुछ लॉज की रिस्ट्रिक्शंस की बुनियाद पर कुछ लॉज बनाए और उन लॉज के ऊपर एक सॉवरेन बनाया कि ये सॉवरेन जो होगा वो सॉवरेन हमें गवर्न करेगा, वो एक्सरसाइज करेगा इन ऑल पावर्स को, ताकि हम जो है वो हमारी लिबर्टी जो है वो कायम रहे, जो हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शन हो, ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो लाइफ्स हैं, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये ख़त्म हो सके, हमारी जो लिबर्टी है, जो प्रॉपर्टी है वो सेफ रह सके। इसीलिए इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट स्टेट, दीज आर द बोथ डिफरेंट थॉट्स। अब इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो मुझे राइट्स मिल सकते हैं, मुझे लिबर्टी मिल सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल कुछ मेरे साथ गलत करता है, मुझसे लड़ता है या मेरे किसी दोस्त का मर्डर कर लेता है, तो मैं उसके खिलाफ तो क्लेम कर सकता हूं कि इसने हमारी लिबर्टी छीनी हुई है। लेकिन स्टेट के खिलाफ कैसे, जबकि स्टेट खुद ही सॉवरेन होगा और स्टेट के खिलाफ ही लिबर्टी जो है वो कैसे मिल सकती है। अब यहाँ पे मिसाल लेते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है किसी मेरे दोस्त को वो उठा लेता है और वो उसको बिना किसी जुर्म के वो अपने पास रख लेता है 2 या 3 दिन के लिए, तो मैं जाहिर सी बात है उसने मेरी लिबर्टी को ठेस पहुंचाई हुई है, मेरे दोस्त की लिबर्टी छीनी हुई है हमसे। तो हम जाएंगे जुडिशरी के पास कि ये जो हमारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है, आप इसको बुलाएं और इससे पूछताछ करें कि इसने ये काम क्यों किया। तो वो उसे बुलाएगी, उससे पूछेगी और फिर उसको अगर वो गलत होगा तो उसे सज़ा भी देगी। तो ये दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट द स्टेट के किसी भी ऑर्गन के साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो दूसरे ऑर्गन उसको सज़ा देगा, दूसरे ऑर्गन को हम कंप्लेन कर सकते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी अबाउट द स्टेट। रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट था। कैसे? रिवोकेबल का मतलब होता है ब्रेकेबल, दैट कैन बी एंडेड एट एनी टाइम। कि ये रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने आपके साथ ये एग्रीमेंट की हुई है, अगर आप इस एग्रीमेंट में ये लॉज हैं, अगर इन लॉज का आप पास रखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, ये जो हमारी एग्रीमेंट है ये चल सकती है। अदरवाइज अगर आप इन लॉज को वायोलेट करेंगे, इन लॉज को नहीं मानेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो ये जो हमारा एग्रीमेंट है, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो रोसो ने भी यही कहा है कि ये जो आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है एक सॉवरेन के साथ, एक स्टेट में जो आप खुद आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस बिना पर आपने बनाया हुआ है कि ये आपको गवर्न करेंगे जस्टिस के साथ। ये आपको प्रॉपर जो राइट्स हैं वो प्रॉपर्टी के, आपकी लाइफ के या लिबर्टी के, ये आपकी लिबर्टी को एक्सरसाइज करेंगे और ये इंश्योर करेंगे आप लिबर्टी एंजॉय कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी को सेव करेंगे, ये आपकी लाइफ को सेव करेंगे। ये ऐसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है। अब जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सरसाइज नहीं हो रहा बाय द सॉवरेनिटी, बाय द गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, इसमें फेल्यूर है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। यू कैन एंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड ओवरकम ओवर गवर्नमेंट, ओवर थ्रू गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था रोसो का, और ये कॉन्सेप्ट इसने दिया था फ्रांस के मोनार्की के खिलाफ, क्योंकि मोनार्की में जो लिबर्टीज थी वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे लोग। तो उस लिबर्टी को लेने के लिए उन ऑर्डिनरी पीपल्स जो थे, ऑर्डिनरी जो इंडिविजुअल्स थे, उनको जगाने के लिए कि ये आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। बेसिकली ये प्रेडिक्शन थी, वैसे था नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ पता नहीं कि दुनिया कितने साल पहले स्टार्ट हो चुकी है, और अभी तो हम प्रेडिक्शंस ही कर सकते हैं कि हमारे जो इंडिविजुअल्स थे जो सिंस द इंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड वो ऐसे रह रहे होंगे, ऐसे रह रहे होंगे। ऐसे ही प्रेडिक्शन जॉन लॉक और हॉब्स ने भी की हुई है। तो रोसो ने भी ये प्रेडिक्शन दी कि लोग ऐसे रहते थे, फिर ऐसे हुआ कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आए और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बिना पर अब स्टेट्स बनना शुरू हो गई। तो ये स्टेट जो
सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम किसी भी टाइम एंड कर सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट हमें हमारी लिबर्टी नहीं पहुंचा रही हो, अगर वो वेल गवर्नड नहीं है तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फ्रांस के खिलाफ इस रोसो की एक चोरी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट चोरी। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है इंशाल्लाह। टुडे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी डिस्कसिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट चोरी बाय जॉन लॉक एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट चोरी बाय हॉब्स। तो हम इंशाल्लाह कल इन दोनों को सेपरेटली एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे और उनके बाद देयर वुड बी द क्रिटिसिज्म ओवर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज ऑफ लॉक, हॉब्स एंड रोसो। इन तीनों की थ्योरीज जो हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज हैं, इनके ऊपर हम अलग से क्रिटिसिज्म है वो उस पर लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।